Good morning, kids. Welcome to the online classes of Layal Public School. How are you? I hope you all are good at home and enjoy your classes. So, students, are you ready? Yes. Firstly, take out your science book, page number 57. Okay, open your book, page number 57. Today we are going to start our new chapter, which is cloth and homes. Cloth and homes. Chapter 9, cloth and homes. Okay. In this chapter, you should understand the need of a house and the reason for living in a house. In this lesson, we will learn that a family need to live in a house and that the house should meet the needs of the family members. You would also know that a house keep us safe from cold, rain, wind and thieves. You would know that the houses are of different shapes and size. Every house has different room for different activity such as cooking, bathing, washing, eating, sleeping, studying, etc. In the next section of this chapter, we will learn no, we will know that we wear clothes because they protect us from heat, cold, rain, and wind. You will also learn that the kinds of the clothes wear according to the season. Cotton clothes for summer season, woolen clothes for winter season, and waterproof for the rainy season. Okay, students, in this chapter, we will learn all these things. Okay, now, yes, yes, put your finger on your book and read with me. Okay, we wear different types of clothes on different occasion. हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग पार्टी में जाना है तो हम उसके लिए पार्टी वेयर ड्रेस पहनते हैं है ना अगर हमें किसी ऐसी मतलब कैजुअल किसी के घर जाना है तो हम उसके लिए कैजुअल ड्रेस पहनेंगे भजन कीर्तन में जाना है तो उसके लिए हम कुर्ता पजामा पहनते हैं इस टाइप से हम अलग अलग ओकेजन के लिए हम अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं यू नो ना आप सबको भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है ना तैयार होते हैं यस बट नाउ ड्यू टू कोविड हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं ना इसलिए हमें घर पे रहना पड़ता है यस दिस इज वेरी सैड ओके नाउ it's activity time. Okay. Write the names of the following clothes using the word giving below. First word is S-K-I-R-T, skirt. S-H-I-R-T, shirt. C-O-A-T, coat. F-R-O-C-K, frock. देखो स्कर्ट शर्ट कोट और फ्रॉक आप देखिए पिक्चर्स हैं जो पिक्चर्स जिसकी है हम उसके नीचे उसका नेम लिख देंगे ओके हम वहां पर उसका नेम लिख देंगे यस यस सो वी राइट ओके यस फर्स्ट पिक्चर इज frog. So we write frog here. F-R-O-C-K. You also write, okay? Take out your pencil and write with me. Write neatly. Yes? So let's start writing F-R-O-C-K. Frog. Okay? Now next is shirt. So we write shirt here. We write shirt here. Yes, write with me. S-H-I-R-T. Shirt. Okay? Good. Very good. Yes, write neatly बेटा. आपको कैसा लिखना है? Write neatly. And this one is yes, girls पहनती है ना इसको. Skirt. क्या होगा?
स्कर्ट, क्या है ये? स्कर्ट, यस, शर्ट, स्कर्ट, SKIRT, स्कर्ट. Yes, this is coat, 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 coat. Okay, now moving to the next topic. Yes, okay, yes, remember students, put your finger on your book and try to understand it. Okay, and speak with me also. Okay, yes, need for clothes, need for clothes, हमें clothes की need क्यों होती है? Yes, वो हम पढ़ेंगे इसमें. We wear clothes to protect our body from heat, cold and rain. हम क्लोथ्स क्यों वियर करते हैं? हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें अपनी बॉडी की सुरक्षा करने के लिए क्लोथ्स को वियर करते हैं, मतलब क्लोथ पहनते हैं. किस किस से करते हैं? हीट से, कोल्ड से और रेन से. अगर आपने कोई ड्रेस नहीं पहनी है और बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपको सनबर्न हो सकता है ना, सन आपकी स्किन ब्लैक हो जाएगी, है ना. ऐसे ही विंटर्स में अगर आप क्लोथ नहीं पहनते हो, देखो आपके जो हैंड्स है, वैसे तो आपने अच्छे से स्वेटर वगैरह पहना होता है, और अगर नहीं पहना होता तो आपके हैंड्स जो होते हैं वो एकदम रेड रेड हो जाते हैं ना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है. यस, एंड रेन, अगर आप विदाउट अम्ब्रेला और विदाउट रेनकोट के जाओगे, तो क्या आप गीले हो जाओगे ना एकदम से, और फिर आपको कोल्ड हो सकता है ऐसे. सो फर्स्ट पिक्चर इज हॉट डे. देखो ये जो गर्ल है ये फैन के आगे है ना, इसने फैन का यूज किया और आइसक्रीम खा रही है. कोल्ड डे, देखो इसने यहाँ पर आग जलाई हुई है ना, और अपने हाथों को इसके ऊपर सेक रहा है. और देखो हॉट कॉफी या हॉट चॉकलेट जो भी ये पी रहा है, जो इसको पसंद है ना, और स्वेटर पहना है, मफलर भी है ना. रेनी डे, रेनी डे में देखो बारिश आ रही है और इस बच्चे ने अम्ब्रेला लिया हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट, टर्न योर पेज. यस, वेरी गुड. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. अब यहाँ पर मैम आपको बताएगी क्लोथ्स के टाइप, अलग अलग तरीके के जो क्लोथ्स होते हैं उनके बारे में. वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर. हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग पहनते हैं. वेदर मतलब सीजन, मौसम, है ना, उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं. When it is hot, जब गर्म होता है, we wear cotton clothes. गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? Cotton clothes. Look at this picture. This is cotton plant. देखो ये जो white white है ना, ये cotton है. Okay? और कॉटन प्लांट है ना, ये जो व्हाइट व्हाइट है ये कॉटन है, और ये कॉटन प्लांट है. कॉटन क्लोथ्स देखो लाइक दिस, एकदम लाइट होते हैं, जो आपकी बॉडी को कूल रखते हैं. कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन. कॉटन क्लॉथ किससे बने होते हैं? कॉटन से बने होते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. हमें कॉटन कहाँ से मिलती है? वेयर? यस, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन प्लांट्स कीप अस कूल. जैसे कि मैम ने अभी आपको बताया ना, कॉटन प्लांट्स कीप आवर बॉडी कूल. हमारी बॉडी को वो कूल रखते हैं. स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड रीड विद मी, बिकॉज ये आपकी हेल्प करेगा आपको लेसन को समझने में. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटरली. ओके बेटा. When it is cold, we wear woolen clothes. When it is cold, we wear woolen clothes. जब ठंड मौसम आता है ना, ठंडी का, है ना, जैसे कि अभी है, तो हम सबको बहुत ठंड लगती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्लव्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, है ना. वूलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वूल. और वूलन जो क्लोथ्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? वूल से बने होते हैं, ऊन से बने होते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. किससे मिलती है हमें वूल? शीप से. लुक एट दिस पिक्चर.
ये शीप है ना, और ये देखो इसके ऊपर जो है ये क्या है, वूल है, ऊन है। यस, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, और जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को कैसा रखते हैं, गर्म रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन इट्स रेन वी वियर अ रेन। जब बारिश होती है तो हम क्या पहनते हैं, रेन कोट ओवर आर क्लोथ्स। हम अपने क्लोथ्स के ऊपर क्या पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 चिल्ड्रन है, उसमें से एक ने क्या किया है, रेन कोट पहना है ना, और दूसरे ने क्या किया है, अम्ब्रेला लिया हुआ है। We also wear gumboots and carry an umbrella, और क्या पहनते हैं हम उसके साथ, गमबूट्स। देखो, लुक एट दिस पिक्चर। यस, देखो इस स्टूडेंट ने पहना है ना, इस चिल्ड्रन ने। यस, तो वी वियर गमबूट्स और कैरी अम्ब्रेला। इसने, इस चाइल्ड ने क्या किया है, अम्ब्रेला को कैरी किया है। रेन कोट, गमबूट्स एंड अम्ब्रेला प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, और ये क्या करते हैं, हमें गीला होने से बचाते हैं। वी शुड ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ओके, नाउ लेट्स रिकॉल, टिक द करेक्ट वर्ड, cotton, woolen clothes keep us cool. Which clothes keep us cool? Yes, tell me. Cotton clothes, so we take on cotton. Okay, we get wool from buffalo or sheep, so we take on sheep. Okay, now next is cotton, woolen clothes keep us warm. कौन से क्लोथ्स हमको वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, यस, वूलन। वेरी गुड, सो टिक ऑन वूलन। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको, वेरी गुड। नाउ नीड फॉर अ होम। नाउ इस चैप्टर का नेक्स्ट सेशन आया ना, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, क्लोथ्स के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नीड ऑफ अ हाउस, हमें हाउस की नीड क्यों है। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, हम सभी को जरूरत होती है हाउस की, उसमें रहने के लिए, घर की उसमें रहने के लिए। अ हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। जो हमारा हाउस होता है वो हमें सेफ रखता है, किस किस से, हीट गरम, कोल्ड ठंडा, रेन बारिश, एंड स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तूफानी हवा से। इट ऑल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड थीव्स, और ये हमें सेफ रखता है, और किससे सेफ रखता है, जंगली जानवरों से और थीव चोरों से। ओके, नाउ टर्न योर पेज। यस, पुट योर फिंगर ऑन योर बुक। ओके, डोंट मूव हियर एंड देयर। यस, रूम्स इन अ हाउस। अब जो हमारा घर है उसमें अलग अलग तरह के रूम होते हैं ना, आपको पता है ना कौन कौन से रूम होते हैं उसमें। यस, अब हम अगेन रिपीट कर रहे हैं ना, आपको मजा आएगा। यस, यू एंजॉय दिस। अ हाउस हैज मैनी रूम्स, उसमें जो हमारा घर होता है उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। ईच रूम हैज अ डिफरेंट यूज, और सभी कमरों का अपना अलग अलग यूज होता है। We entertain our guest in living room. हम अपने जो गेस्ट को बुलाते हैं, बिठाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको एंटरटेनमेंट करते हैं उनका, वो कहाँ पे करते हैं, लिविंग रूम, इन दिस रूम। ओके, लिविंग रूम में क्या क्या होता है, सोफा होता है, टीवी होता है, वेयर वी वेलकम आवर गेस्ट। ओके, our mother cooks food in the kitchen. Yes, this is kitchen. Yes, मम्मा बनाती है ना आपके लिए yummy yummy food. Yes, we eat food with our family in the dining room. और हम फूड को कहाँ पर बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल पर ना। तो डाइनिंग टेबल जहाँ रखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम। यस, वेरी गुड। ओके, yes,
Now we sleep in our bedroom. We heard? Yes. We sleep in our bedroom. जहां पर हमारा बेड होता है, यस, वो कौन सा रूम होता है? बेडरूम, जहां पर हम थक जाते हैं और फिर सोने के लिए जाते हैं. वी स्लीप इन द नाइट ना. यस. वी स्टडी इन आवर स्टडी रूम. और हम स्टडी कहाँ करते हैं? स्टडी रूम में, है ना. तो स्टडी रूम में क्या होती है? हमारी स्टडी टेबल होती है, बुक शेल्फ होती है ना, चेयर, कंप्यूटर, है ना. यस. नाउ नेक्स्ट इज वी टेक अ बाथ इन द. कहां पर नहाते हैं हम? बाथरूम. वी टेक बाथ इन द बाथरूम. यस. नाउ अ हाउस हैज डोर एंड विंडो. देखो आपके घर में एक डोर होता है, उससे तो आप अंदर जाओगे ना. और विंडोज होती है, खिड़कियां, जो हमारी जो फ्रेश एयर को अंदर लाती हैं. विंडो लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर. विंडो से क्या आती है? सनलाइट आती है और साफ हवा आती है, फ्रेश एयर आती है. यस. दिस इज हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस. If you have a 6 room, तो write 6 here. 4 room, 4 here. जितने भी रूम्स आपके घर में, आपको यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर लिखना है. Do you keep our house tidy? Yes. आपका आंसर yes है तो yes लिखेंगे और no है तो no लिखेंगे. Yes. We must keep our house neat and clean. हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए. We should keep things in right places. और हमें सभी चीजों को जो उनकी जगह है ना, वहीं पर रखना चाहिए, वहीं पर रखना चाहिए. ओके. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे. ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग. टिल देन यू रीड दिस लेसन 2 times. Okay. Thank you. Bye bye.